Last class, just we have studied the mod, right, and the inequalities of mod. Based on that only, I have given the question. And what I said in these type of questions, if with the positive number is greater than or less than, the easiest way for first four question, the easiest way to solve these question is to square this. Right. First question, right? So if I'm rewriting this as x minus 2 ka mod greater than equal to 2, squaring both sides, x minus 2 whole square greater than equal to 4, 2 square. So this is x minus 2 the whole square minus 2 square greater than equal to 0. So this will be x minus 2 minus 2, x minus 2 plus 2 greater than equal to 0. X into x minus 4 greater than equal to 0. Make the number line. We know this. This is 0 and 4. Positive, Yes, negative. sir. So answer is minus infinity to 0. Union 4 to infinity. Hope everyone is getting this, Yes, right? sir. Yes, sir. You can say this answer is, and now from this, 2 minus 2 will be 0. So minus infinity to 0. Union 2 plus 2 is 4, 4 to infinity is the answer for greater than equal to. For less than equal to, this is minus 4, minus 5, so minus 4 to 6. I guess you are getting something like Yes, this. sir. This you are getting minus 2 and this to minus infinity to 4, union, right, 8 to infinity. 8 to infinity. Yes, sir. Minus 2 minus 5 is minus 7, right? 2 and minus 5 is minus 3, right? Yes, sir. अगर लेस देन है तो इट्स Yes. गोइंग बिटवीन, अगर ग्रेटर देन है तो इट इज गोइंग आउटसाइड, राइट? हाउ मेनी ऑफ यू गॉट ऑल करेक्ट? प्लीज राइट डाउन यस इन Yes, चैट. sir. अरे वाह, ओह, ये तो दिल खुश कर दिए. वेरी गुड. तो सबने यस की झड़ी लगा दी. वेरी गुड. ये हुई ना बात. ये देखो, बट नेगेटिव वैल्यूज के लिए व्हाट आई सेड, यू डोंट वरी. नेगेटिव वैल्यूज के लिए सिंपल लॉजिक इज मोर देन इनफ ना, उससे ऊपर अपने को चाहिए ही नहीं. मॉड इज ऑलवेज अ पॉजिटिव क्वांटिटी, so this positive quantity is always R. right. So very good, r, or you can write minus infinity to plus infinity. Yes, sir. Mod something less than minus, so kabhi to ye I. positive. 5. Very good. Fifth and sixth, right? And again, ये careful होने वाले कुछ questions हैं मेरे पास. We have to be careful in this part, right? See, start with first. Mod of something less than minus or equal to, not possible, right? Mod of something सर सेवेंथ वाला 7th वाला रहेगा. देख लेंगे बेटा. It's always greater than 0, but x is equal to 1 is the problem. So r R minus negates my 1. Yes, sir. negation. 1 or 1 to infinity. Very good. Good going, everyone. This mod of something greater than 0 as well as equal to 0. So r again Negates minus, 6. and mod of something less than 0. It's not 5. possible. But mod of something less than equal to 0. R Minus belongs 5. to minus 5. X belongs to minus 5. X is equal to minus 1 और 7 कहाँ रह गया? 7. X, this is greater than r. Mod of something greater than minus 6. Always true. Yes, sir. ये 13 क्वेश्चन में आप लोगों को लिखना है कैसे. 13 में ये 13 जिनके राइट है वो 13, 12, 11 जो भी नंबर्स हैं, दैट यू हैव टू राइट, कि जो भी नंबर्स आपके पास हैं यू हैव टू राइट इट
Done, everyone? No, sir. No, sir. Good No, far. sir, wait. हेलो हेलो सर, आवाज आ रही है? हेलो। हाँ बेटा, पूरा आवाज आ रहा है। देखो ये क्वेश्चन।
Yes, sir. सर डन बेटा। ये सर ये हाँ सर 11/10 कैसे? ये ये this you are हाँ solving. हाँ सर, ओके हाँ. It's only the calculation part ना. I guess everyone is getting all correct. फिर से लिख दो 1 2 3 4. How many correct? 4. All 4. 3. Very good. 3. Not bad. Not bad. Now look. X minus 1. X minus 2 is equal to 7. Right? Carefully. सब लोग पेन वेन रख दो, आराम से रिलैक्स हो जाओ. Then I'm solving this. If you're relaxed, पेन वेन रख दो. पानी वानी पीना है पी के आ जाओ. चाय वाय बनवाना है बनवा लो. हाँ, आधे 1 घंटे सोना है सो लो. उसके बाद स्टार्ट करते हैं. हो गए? उठ गए सभी लोग? चलो जागो गांव वालों. देखो अब where this will be 0 at 1, where this will be 0 at 2. Mark these 2 points, right? Means these two, x minus 1, x minus 2, divide this number line into 3 parts. One part is there, second part is here, and third part is here, right? ये 3 पार्ट में डिवाइड हुआ.
एक एक करके वर्किंग करते हैं, राइट। केस फर्स्ट, x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 के लिए, जस्ट x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 के लिए, राइट। सी, अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन 2 है तो x माइनस 1 मॉड में है, मॉड दो तरह से लिखा जा सकता है, या तो x माइनस 1 या 1 माइनस एक्स। तो आप केवल ये रख के सोचो कि 2 माइनस 1 पे कब पॉजिटिव आएगा, x माइनस 1 रखने पर या 1 माइनस एक्स रखने पे। क्या सर? x greater So than can you repeat it, please? greater than equal to 2, what should be this mod? अगर मैं हटाऊं तो what is this, x minus 1 लिखूंगा या 1 minus x लिखूं इसे? For x x minus 1. minus 1, why x minus 1? Positive value. X minus 1 आएगा. 1 minus x. के कारण always the value will be positive. तो अगर मैं 2 minus 1 रख रहा हूं तो वैल्यू इज पॉजिटिव। अब ये मेरे को बताओ कि x minus 2 के मॉड को मॉड हटाऊंगा x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 के लिए, व्हाट यू हैव टू राइट, x minus 2 या 2 minus x? X minus 2. x minus Very good. X minus 2 is equal to 7. So what we are getting? 2x minus 3 is equal to 7. X is equal to 10 by 2 is equal to 5. Right? X lies between 1 to 2. Right? 1 to 2 में होगा तब क्या होगा सोचो तो, आओ सोचते हैं। X minus X 1 से 2 के बीच में है, 1.2, 1.5, 1.7 कुछ भी है। तो अब X minus 1. वेरी गुड, फर्स्ट हटाया तो x माइनस 1। अब x माइनस 2 में अगर मॉड हटाऊंगा तो क्या लिखूं, x 2 minus सर, x. सर नहीं, ये नहीं. आपने 2 2 में minus x. मतलब 2 minus x. सर 2 में सर, x इक्वालिटी minus क्यों नहीं डाला? बेटा उधर तो ले चुका ना इक्वलिटी एक ही बार, अच्छा हाँ राइट वाले में, तो दोनों में लेने का सर, मतलब ये एक बार ब्लू में लिखा, फिर से एक बार बोलो ना रिपीट। x, देखो मॉड को आप सॉल्व नहीं कर सकते, प्लस माइनस होने के लिए मॉड को हटाना पड़ेगा, राइट। अब मॉड के लिए हाँ हम लोग सर। ने पहले ही देखा कि मॉड इज ए पॉजिटिव क्वांटिटी, ठीक है। अब मॉड की वैल्यू जो है जो भी होगी, x कुछ भी रहे, आखिरी में आंसर एंड आंसर हमारा पॉजिटिव आना चाहिए, ठीक है। नाउ तो x माइनस 1 में अगर x की वैल्यू 1 से 2 के बीच में है तो व्हाट यू विल राइट, x माइनस 1 लिखूं या 1 माइनस x लिखूं? x minus 1 वेरी गुड ना, कुछ वैल्यू 1.2 रख के देखो ना, 1.2 माइनस 1.2 पॉजिटिव नंबर है। अब x माइनस 2 को क्या लिखूं इस इंटरवल में जब x की वैल्यू 1 से 2 के बीच में? हाँ तब 2 minus minus x. हाँ सर समझा। समझा ना सभी ने? हाँ सर हाँ समझा। सर। yes sir. अब आप लोगों की बारी ना, बोलना मत, लिखना, राइट। x लेस देन 1 के लिए व्हाट यू शुड राइट, दिस एंड दिस, राइट डाउन इन चैट। x लेस देन 1 what should we write, x minus 1 या 1 minus x? yes, very good बेटा। सागर very good, डेविड, तेज, पंक, यस, स्मृति, सागर, तेज, ओके। अब मैं एक्सपेक्ट करता हूँ सभी लोग आंसर लिखें, अच्छा लगेगा यार। x लेस देन 1 मान लो 0 ले लिया तो 0 माइनस 1 नॉट पॉजिटिव, 0 माइनस 1 इज नॉट पॉजिटिव, राइट। 1 minus 0 is positive, so first value will be 1 minus x. 0 minus 2 is not positive, 2 minus 0 is positive, so 2 minus x is equal to 7, right. 3 minus 2x is equal to 7, 2x is equal to minus 4, x is equal to minus 2, x की वैल्यू minus 2 आ गई एंड यहाँ x की वैल्यू 5 आ गई, राइट। ये 2 आ गई। अब ये देखना है x की वैल्यू minus 2 आई कब के लिए, when x less than 1, तो x लेस देन 1 माइनस 2 सही है, x ग्रेटर देन 2 के लिए मुझे 5 मिला, ये भी सही है। तो मेरे पास 2 आंसर आ गए यहाँ पर। ये वाले में देखूं x x कैंसिल हो गया, 1 इज इक्वल टू 7, नॉट गुड। बहुत अच्छे से इसे नोट सर। कर। यस बेटा। सर अगर 7 इक्वल 7 अगर ऐसे बाई चांस आ जाता है तो मतलब very 7 good. भी वैल्यू हो जाएगा? अगर x 7 इज इक्वल टू 7 आ गया, इसका मतलब है दिस इज ट्रू, तो उस समय मेरा आंसर होता 1 to x बिलोंग्स टू 1 to 2, कंप्लीट वैल्यू होता मेरा। सर रियल नंबर आंसर आता ना फिर? नहीं बेटा, जिस इंटरवल में आया वही होता ना, तो रियल नंबर नहीं होके इंटरवल हमने 1 to 2 लिया था ना, तो 1 to 2 मेरा आंसर होता। आएगा उसमें भी दिखाऊंगा आपको।
Note down everyone, please. Done. No, sir. No, sir, 1 Sir, minute. 1 minute. Take your time. Take your time. सर Yes. सर मुझे एक कंसेप्चुअल डाउट था, मैं पूछ सकती हूँ? हाँ हाँ बेटा एकदम. सर हम मॉड के अंदर हम पॉजिटिव या नेगेटिव कोई भी वैल्यू हो सकती है, राइट? हम्म. और सर हम जब मॉड को ओपन करेंगे तब वो हमेशा पॉजिटिव ही ओपन होगा। हम्म. तो सर एक क्वेश्चन में लाइक 3x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 4, अगर 3x प्लस 1 मॉड में है तो हम जब उसे खोलते हैं तो हम ऐसा क्यों लिखते हैं कि 3x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 4 एंड 3x प्लस 1 इज ऑल्सो इक्वल्स टू -4? वो वेरी गुड क्वेश्चन. वो वहां पर हम लोग सॉल्व करने के लिए हम लोग थोड़ा फास्ट कर लेते हैं उस काम को. एक्चुअल उसकी पूरी वर्किंग ये होती है. You said 3x plus 1 is equal to 4, something like, या right? या So, लाइक दैट। so what you have to do or what you have to think is first case and second case. मैं इसे दो केसेस लूंगा, राइट? अब ये दो केसेस क्या क्या होंगे उसको देखना ध्यान से, राइट? सो ये भी सॉल्व वैसे ही हुआ है. फर्स्ट केस व्हेन 3x plus 1 greater than 0 means if there is a number line, right, this will be 0 at -1 by 3, right? So यस first सर। case I'm taking when x is less than x greater than ये वाले केस ही ले लेता हूँ, right? x greater than -1 by 3. For x greater than -1 by 3, this will be open as 3x plus 1, that equal to 4. But in second case, when I'm saying 3x plus 1 less than 0, so x less than -1 by 3, right? So at that time, this will be minus of 3x plus 1 is equal to 4, ओके right? That's the reason it's looking at that this is -4, but it's not -4, it's minus of 3x plus 1. ओके अंडरस्टूड, दैट्स व्हाई आई Right? गॉट कंफ्यूज्ड। But while solving, it's easier for us to, okay, open this plus or minus and blah, 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 blah. But हाँ हाँ। actually, you are opening this mod again. And this mod is opening as one time plus, one time minus. Not 4 is going plus minus. ओके सर, अंडरस्टूड, थैंक यू। Very good question. You have asked very good question, beta. Very logical question, right? Good. थैंक यू सर। Yeah. See, देखना ये नेक्स्ट ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए.
x minus 2 mod plus x minus 6 mod is equal to 10. Solve this. Take your time, आराम से, no हड़बड़ी, please. Sir, हाँ बेटा. sir, can you explain that concept once again? Actually, I didn't understood. हाँ पर बेटा. Which one? Just Sir, which you explained just now. In one part, I didn't understood. okay, no problem. Once again, we can go. This was the case, right? This was the question, No, right? sir, that explanation which you gave This one, down. this one. Yes, See, I three. didn't understood. Okay. If put any value of x greater than minus 1 by 3, right? If I'm writing 1, 1.5, 2, 3, 3.5, and so on. Right? So what would be this 3x plus 1 को मैं क्या लिखूंगा? 3x plus 1 लिखूं या minus something mod कैसे open करूंगा? सर बट वो 3x plus 1 इज इक्वल्स टू 4 कैसे हो गया वो नहीं समझा मतलब. क्वेश्चन में गिवन है ना ऊपर, क्वेश्चन में गिवन है ना 3x plus 1 का mod is equal to 4. बट सर अगर हम लोग x इज ग्रेटर देन -1/3 तो कोई भी वैल्यू डालेंगे तो दैट विल बी नॉट इक्वल टू 4 ना. No, for every value you are not getting. You are getting only single value. And what is this value? X is equal to 1 only. We are saying ki what we Yes. can write this when x is greater than 3 by minus 1 by 3. And what we will write this when x is less than minus 1 by 3. Right? While opening this, we have to be careful कि positive कब खोलने, negative कब खोलने, right? उसके बाद after solving, तो you'll get some values, or maybe you are not getting some value. Okay. ओके समझा सर. Now see थैंक this. यू सर. Yeah, see this. Very good. Yes. And Smriti, very good. Everyone, take your time. No problem. Take your time.
कुणाल ये क्या है? x इजिकल टू 10, x इजिकल टू 10। सॉरी सर, वो एक्चुअली है ना, भूल से कब का एंटर हो रहा था, मैं कब का देख रहा था कि ये किधर जा रहा है मेरा आंसर। बाद में पता चला कि आधा आधा ही जा रहा है। मैं वापस भेज रहा हूँ आपको। मैं स्टार्ट, यस करेक्ट लग रहा है बेटा, यस सर। सभी का करेक्ट लग रहा है, राइट। सो अगेन स्टार्ट, राइट। डन, डू इट फास्ट, वेरी गुड। तेज, सागर, यस। कैलकुलेशन चेक करना, यस थोड़ा सा। कुणाल, वेरी गुड। एक गड़बड़ हो रहा है, कुछ कैलकुलेशन चेक करना, हड़बड़ाना मत, एकदम सिंपल से जाना, इतने खास क्वेश्चन नहीं है।
Very good. Tej, very good. मैं स्टार्ट करूं? See, Yes, sir, done. done. Very good. Yes, sir. So is 2 and 10 greater than 10, right? So 2x is equal to 27, x is equal to 27 by 2 first. अब मैं थोड़ा सा फास्ट कर सकता हूँ, इसलिए ऐसा कर रहा हूँ. x minus 2 minus x plus 10 is equal to 15, not possible. x less than 2 equal to ले चुका हूँ तो less than रखता हूँ. 12 minus 2x is equal to 15. 2x is equal to minus 3. x is equal to minus 3 by 2. एक minus 3 by 2, एक 27 by 2 आया. ठीक है. How many of you got right answer? Write down yes in chat, please. अरे वाह, आप लोगों ने तो एकदम झड़ी लगा दिए. डू इट फास्ट. इस बार मैंने थोड़ी कंजूसी नहीं की, थोड़ी मैं आगे बढ़ गया एक स्टेप. ठीक है, डू इट.
वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। ख्याल रखना जो वैल्यूज आ रहे हैं, जो आपने पहले कंडीशन लिया है उसके अंडर पे आना चाहिए। जैसे x ग्रेटर देन इक्वल टू 5 है तो वो वैल्यू 5 के अंडर पे आनी चाहिए, वो भी ख्याल रखना आपको। कोई भी वैल्यू नहीं चलेगी, वो उसके अंडर पे आना चाहिए, वो भी ख्याल रखना है। एक बार फिर से देख लेना अपने आंसर्स को, वहीं पर गलत होने के चांस होते हैं। Should I start? यस सर। यस सर। चलो देखें अभी क्या पॉसिबल। नंबर्स मेरे पास हैं 1, 3, 5। केस फर्स्ट ऑब्वियसली x ग्रेटर देन इक्वल टू 5। 5 से ग्रेटर लूंगा तो 3x माइनस 9 इज इक्वल टू 15। x इज इक्वल टू 24/3, दैट्स 8 ओनली। राइट, एक आंसर आ गया। राइट, अब सेकंड वाले पे आते हैं। राइट, x लाइज बिटवीन 3 to 5। 3 to 5 में फर्स्ट तो x माइनस 1 खुलेगा, सेकंड भी x माइनस 3 खुलेगा, थर्ड 5 माइनस x इज इक्वल टू 15। आई गेस एवरीवन इज गेटिंग दिस राइट। ये x इज इक्वल टू 5 गया एंड 14। राइट, बट 14 3 और 5 के बीच में नहीं आता है, तो ये आंसर मैं Yes, sir. राइट। 14 आया तो अच्छी बात है, लेकिन 14 कोई 3 और 5 के बीच का तो नंबर है नहीं, तो मुझे उसे डिस्कार्ड करना पड़ा। थर्ड केस में लूंगा x लाइज बिटवीन 1 to 3। अब 1 to 3 में मैं अगर नंबर बोल रहा हूँ, सो फर्स्ट केस में ये x माइनस 1 आएगा, 3 माइनस एक्स आएगा, 5 माइनस एक्स इज इक्वल टू 15। x x कैंसिल, 8 माइनस 1 7 माइनस x इज इक्वल टू 8। x इज इक्वल टू माइनस 8। राइट, आ तो अच्छा सा रहा है, लेकिन वो 1 से 3 के बीच में नहीं है, तो ये भी मेरा आंसर नहीं है। यही मैं बोल रहा था कि आ रहे हैं आंसर, लेकिन ये भी आपको केयरफुल 1 से 3 के बीच में वो नंबर आने चाहिए, क्योंकि केस तो आपने वो लेके सॉल्व किया। आप बोल रहे हो कि भाई जो भी है आपको लाइक यू वांट शॉप बिटवीन अंधेरी एंड बोरीवली। राइट, अब इसके बीच में बात हो रहा है और सडनली हो जाता है नहीं 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 वो पनवेल में जो शॉप है उसका। अरे तो पनवेल का मेरे को क्या करना, मेरे को तो अंधेरी और बोरीवली के बीच में चाहिए। राइट, अंधेरी और बोरीवली के बीच की बात हो रही है, उसी बीच में अगर कुछ है तो देन इट्स ओके। पनवेल, वी आर नॉट गोइंग टू पनवेल, ओके ना। सो अब नेक्स्ट केस में आई एम गोइंग फॉर लेस देन 1। राइट, लेस देन 1 पर दिस इज 1 माइनस एक्स प्लस 3 माइनस एक्स प्लस 5 minus x is equal to 15.
5 3 8 9 minus 3x is equal to 15, 3x is equal to minus 6, x is equal to minus 2, x लेस देन माइनस, ये भी चलेगा ये भी चलेगा। तो मेरे पास आए तो बहुत सारे वैल्यूज थे, बट आंसर मेरे पास सिर्फ यही दो रहा, -2 and 8। यस तेज, दिति, वेरी गुड बेटा। डेविड, आई गेस यू हैव डन योर कैलकुलेशन मिस्टेक, बट कंसेप्चुअली सही था वो। सर महक, हाँ सर तब हाँ एक बार मतलब मॉड को पॉजिटिवली ओपन और एक बार नेगेटिव मतलब वैसे ओपन करके भी आंसर वही आ रहा है। नहीं 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 नहीं, वो तो यहाँ पर आ रहा है ना, लेकिन तेरे को कब मालूम था कि वो पॉजिटिव करने पर x ग्रेटर देन 5 है या नहीं? तो हम लोगों को हमेशा बेसिक से एकदम सॉल्व करना पड़ेगा। मतलब सर वैसे आंसर आता है, मतलब रॉन्ग भी आ सकता है ऐसे? 110% रॉन्ग आ सकता है। सर लेकिन सर इसमें तो करेक्ट आया था। ये बेटा मैथ्स में एक सबसे बड़ा मैथ्स का फॉर्मूला है मालूम, अगर कोई भी स्टेटमेंट या कोई भी फॉर्मूला अगर 1 लाख जगह पर ट्रू है तो हाँ सर, एक पे रॉन्ग है तो फिर पूरा रॉन्ग हो जाएगा। जगह भी रॉन्ग है तो वो ऑलवेज रॉन्ग कहलाता है। हाँ, तो हम लोग को थोड़ा सा उसका ये रखना पड़ेगा ना। यस सर, ओके सर। चलेगा? हाँ सर। मैंने थोड़ा यस सा सर। हाँ? मैं चलो एक क्वेश्चन ऐसे ही प्लस पे कर लो, उसके बाद करना माइनस पे ना, यहाँ प्लस ही रख देता हूँ, कंफ्यूजन ना हो, एक दो प्रैक्टिस हो जाए उसके बाद I'll give you ना।
very good everyone. Should I start? मैं start करूं? हो गया? हाँ सर हो गया. Values हमारे पास फिर से only 3 values आते हैं, right? First will be 0 at 2, 1, 2 and 3. 1, 2 and 3. Case first, x greater than equal to 3, right? X greater than equal to 3, so what we can say, all thing will be positive. 4x minus 8 is equal to 15. X is equal to 23 by 4. I guess ये दोनों में भी आप लोगों ने किया होगा, वहाँ भी दिखा देता हूँ, बट यू आर नॉट गेटिंग आंसर. जरूरी नहीं है कि हमेशा नहीं मिले, इन केसेस में नहीं मिल रहा है. X lies between 2 to 3. 2 to 3, right? This is x minus 1, 2x minus 4, 3 minus x is equal to 15. X cancel out. 2x minus 5, 17 by 2. 17 by 2, 2 to 3 is not possible. उस बीच में तो possible ही नहीं है कि वहाँ कुछ you are getting something, right? X lies between 1 to 2, right? So this will be x minus 1, 4 minus 2x, 3 minus x is equal to 15. X cancel out. 4, 7 minus 1, 6. Minus 9 is equal to 2x. X is equal to minus of some. Not getting again. Right? So let's go for x less than 1. Right? 8 minus 4x is equal to 15. So 4x is equal to minus 7. X is equal to minus 7 by 4. So two values are there, minus 7 by 4 and 23 by 4. So how many of you are getting this? अरे बाप रे, बहुत सारे लोगों का ऐसा ही. Very good. Very good. Tej, your voice is not coming. Tej, want to ask anything? No, sir. Okay. So I guess everyone is getting this, right? तो एक और segment पे मैं जा सकता हूँ now. Inequalities. Right? Mod के inequalities like greater than equal to मैंने ये राइट, दोनों तरफ मॉड है ना. केस फर्स्ट मैं आपको बता रहा हूं, बोथ साइड मॉड, दोनों तरफ मॉड हो, देन हाउ टू सॉल्व दिस. कैसे करोगे सॉल्व? बहुत सिंपल है, स्क्वायरिंग बोथ साइड, राइट. सो
x minus 2 का whole square minus 3x minus 1 का whole square greater than equal to 0. What I am getting? X minus 2 minus 3x plus 1, x minus 2 plus 3x minus 1 greater than equal to 0. So this is minus 2x minus 1, and this is 4x minus 3 greater than equal to 0. Minus common लिया, 2x plus 1 and 4x minus 3 is less than equal to 0. Minus से multiply कर दिया हूँ. Now we have to make the number line, and in the number line, right, two values minus half and 3/4 in between है, तो यही वाली आनी चाहिए. Minus half to 3/4 is your answer. बहुत सिंपल से मैंने ये सॉल्व कर दिया आपके लिए. प्लीज गुड. नोट डाउन प्लीज. डन. Sir, Done, only sir. 1 minute. Yes, sir. यू ऑल आर डूइंग वेरी गुड. मेंटेन रखना इस चीज को. बहुत अच्छे अच्छे कंसेप्ट को आप लोगों ने बहुत अच्छे से समझ लिया है. इट्स नॉट अ जोक. These are very good concept and very tough concepts, and उसके क्वेश्चन इतने अच्छे से सॉल्व करना इज वेरी 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 डिफिकल्ट. इस चीज को मेंटेन रखना काफी हेल्पफुल रहेगा आगे के लिए. Sir, done. डन. सी, तो फर्स्ट केस मैंने बोले कि व्हेन बोथ साइड मॉड्स, राइट. सेकंड केस 2, 2x minus 1 is in the mod greater than x minus 2. One side mod, other side mod is not there, right? Only x minus 2 is there, right? See, अब मेरे को एक बात मालूम है कि if this number is positive, right, तो मैं दोनों तरफ स्क्वायर करके तो सॉल्व कर ही सकता हूँ. But if this is not positive, so case when, right, this is negative. इस बात को थोड़ा सोचते हैं कि अगर x minus 2 लेस देन 0 हो जाए, राइट, सो ये नेगेटिव क्वांटिटी होगी और ये मॉड गिवन है, राइट. सो व्हाट वी कैन से कि नेगेटिव क्वांटिटी मींस फॉर x लेस देन 2 दिस इज ऑलवेज ट्रू, क्योंकि ये पॉजिटिव क्वांटिटी होगी और ये नेगेटिव क्वांटिटी होगी, और मैं बोल रहा हूँ पॉजिटिव को नेगेटिव से बड़ा होना चाहिए. हाँ ट्रू है, राइट. सो x लेस देन 2 विदाउट सॉल्विंग मैं आंसर पहुंच गया. इज इट ओके? Yes, sir. राइट. फर्स्ट, राइट. एंड फिर मैंने लिया सेकंड केस क्या, व्हेन x ग्रेटर देन 2. ओके, x ग्रेटर देन 2 लेते ही मेरी लॉटरी खुल गई. क्यों ऐसा? क्योंकि जैसे मैंने x ग्रेटर देन 2 लिया, आई नो कि बोथ साइड पॉजिटिव. अगर दोनों साइड पॉजिटिव है
राइट। तो मेरे को स्क्वायर करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कैसे हम लोगों ने बुद्धू बनाया क्वेश्चन को वो सोचो। पहले हमने बोला x लेस देन 0 और उस समय मैंने अपना आंसर निकाल लिया। उसके बाद दूसरे में हमने कहा कि ये मेरे पास है, सो दिस विल बी 2x minus 1 plus x minus 2 must be greater than 0. x plus 1 into 3x minus 3 greater than 0. राइट। यहाँ से जो आंसर मेरे पास आ रहे हैं -1, ध्यान देना बड़ा मजा आएगा इसमें। इसके बाहर की वैल्यूज गई, इसके बाहर गई, बट ये जाने के बावजूद मेरे को मालूम है कि आई वॉज टॉकिंग फॉर x ग्रेटर देन 2। यहाँ पर ये है बट x ग्रेटर देन 2 कहीं यहाँ पर है, राइट। तो मेरा पेरेंटल कंडीशन तो x ग्रेटर देन 2 का है। सो 100% यहाँ पर ये पूरा आंसर आने के बाद भी आई हैव टू गो फॉर x ग्रेटर देन 2 की बात कर रहा हूँ, तो 2 टू इन्फिनिटी ग्रेटर देन इक्वल टू 2 के लिए, राइट। तो ये 2 टू इन्फिनिटी भी मेरे पास जा रहा है और यहाँ लेस देन 2 को भी पूरी तरह से सेटिस्फाई कर दिया। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, r माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी इज द कंप्लीट आंसर। नोट डाउन प्लीज। सर 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 बट लेकिन फर्स्ट पार्ट में इक्वल्स मतलब सिर्फ लेस देन 2 है ना, तो मतलब r कैसे कह सकते हैं? फर्स्ट पार्ट में हाँ सर, सर लेस देन ए 2 पार्ट है, में लेस एक देन में 2 है, लेस देन 2 इक्वल है, तो एक नहीं है। में और एक में ग्रेटर देन 2 है। सेकंड वाले में तो इक्वल टू 2 तो हमेशा सेटिस्फाई करिए ना रहा है बेटा, कि अगर मैंने 2 डाला तो ये क्या आएगा आपके पास 4 - 1 3, और इधर डाला तो क्या आएगा, वो 0 आएगा। तो 3 ग्रेटर देन 0 ट्रू स्टेटमेंट ही मैं बोलूंगा। सर वो लास्ट वाला, अगर ए पार्ट में x इज लेस देन 2 आ रहा है और सर सेकंड पार्ट में 2 टू इंफिनिटी, तो r कैसे कह सकते हैं? हाँ सर, वही डाउट है। x लेस देन 2 क्लियर है, x ग्रेटर देन 2 क्लियर है, लेस देन 2 क्लियर है सर। सर एक बार रिपीट करो ना, ग्रेटर देन 2 क्यों है? ग्रेटर देन 2 क्यों होगा। तो हमने x ग्रेटर देन 2 ये पहले स्टार्ट किया सॉल्व करना, राइट। ग्रेटर देन इनफैक्ट इक्वल टू 2 भी मैं ले सकता हूँ। ग्रेटर देन इक्वल टू 2 पे, इक्वल टू 2 पे ये 0 हो जाएगा और उस समय ये 3 होगा, तो 3 ग्रेटर देन 0 है, तो इक्वलिटी को तो अपने आप में ये होल्ड कर ही रहा है, राइट। एंड उसके बाद मैंने जब स्क्वायर करके सॉल्यूशन निकाला तो इससे मुझे सॉल्यूशन ये निकला पूरा -इन्फिनिटी टू -1 एंड 1 टू इन्फिनिटी। बट मैं ये सॉल्व किस समय के लिए कर रहा था, तो ये यहाँ था x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 के लिए। तो मैंने कहा x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है तो मुझे ये नंबर लेना चाहिए, तो मैंने ये नंबर ले लिया, राइट। तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 2, तो ये 2 टू इन्फिनिटी यहाँ पर सॉल्व हो गया। और पहले जो मैंने आंसर निकाला था शुरुआत वाले में ए केस में, वो ए केस मेरा था उस समय था -इन्फिनिटी टू 2, राइट। क्या बोलूं दोनों मिला के? अच्छा हाँ सर, समझा। हाँ सर, समझा। ओके सर, समझा। हाँ आ रहा है। राइट। एक क्वेश्चन आप लोगों को दे रहा हूँ, ध्यान से देखना। सर वेट, वो बाकी सर, था वो कॉपी नहीं किया था। हाँ सर। सर, ऊपर। हाँ सर। सब रहेगा। नोट डाउन प्लीज। सर सो फिर ए वाला जो पार्ट है उसमें r मतलब सब वैल्यूज आएगी ना, या फिर -इन्फिनिटी टू 2 तक ही होगा? नहीं देखो ना बेटा, पेरेंटल क्या है, आपने कहाँ के लिए सॉल्व किया, x - 2 लेस देन 0 के लिए, मतलब x लेस देन 2 के लिए सॉल्व किया। ओके, सो 2 इज द लास्ट लिमिट ऑफ a। ओके, समझा। वेरी गुड, बहुत सही सोचा। तो इज द लास्ट लिमिट ऑफ दिस, तो 2 तक ही मैं गया और सेकंड केस ओके सर, समझा। आगे गया। सर यस। सर, अगर इक्वालिटी साइन रिवर्स हो जाती तो क्या आता? थर्ड केस में हम लोग देखेंगे, वो 3 केस दिखाऊंगा ना, अच्छा, ओके सर। थर्ड वाले में उस पे आऊंगा। तो फर्स्ट वाला जो x लेस देन, अभी बताता हूँ, वो नहीं कंफ्यूज करता हूँ, पहले इसे अच्छे से डाइजेस्ट कर लें, देन विल गो फॉर द थर्ड वन। ओके सर।
Done. Yes. Yes, sir. Very good, Sagar.
शुड आई स्टार्ट? मैं स्टार्ट करूं? यस सर। Yes, sir. See, case first, when 5x minus 2 less than 0 और इक्वल टू 0, इक्वल टू 0 भी सेटिस्फाई करेगा ही, क्योंकि दिस विल बी 0, तो वो तो पॉजिटिव ही रहेगा, राइट? तो x लेस देन इक्वल टू 2/5 व्हेन दिस इज नेगेटिव और 0, दिस इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी, सो दिस इज ऑलवेज ट्रू। सर हाँ बेटा, सर वो इक्वल टू क्यों लिया? इक्वल टू पे ये 0 हो जाएगा और ये कोई पॉजिटिव नंबर होगा। नॉट समथिंग इज अ पॉजिटिव नंबर ना, 0 तो हो पॉजिटिव नंबर ऑलवेज ग्रेटर देन 0। ओके सर। आप दूसरे केस में भी ले सकते हो या अलग से थर्ड केस बना के भी आप ले सकते हो, नो वरी। 5x minus 2 greater than 0 के लिए now we can say 2x minus 3 का whole square greater than equal to 5x minus 2 का whole square, right? So 5x minus 2 minus 2x plus 3, 5x minus 2 plus 2x minus 3 is less than equal to 0। इसे उस तरफ ले गया ना, इसलिए less than equal to 0 आ रहा है। 3x plus 1 and this is 7x minus 5 less than equal to 0। तो x की वैल्यू क्या पॉसिबिलिटी है यहाँ पर? दो चीजें होंगी, -1/3 एंड 5/7, Yes, sir. राइट? अब ये ख्याल रखना, लेकिन हमने कब के लिए केस लिया है? 2/5 से ऊपर होने के लिए, राइट? सो ये मेरे लिए पैरेंटल कंडीशन है कि इस मस्ट बी ग्रेटर देन 2/5, तो 2/5, राइट? 2/5 से ग्रेटर के लिए, तो इस समय आंसर मेरे पास आया 2/5 to 5/7, राइट? बट ऑलरेडी आ चुका था -∞ to 2/5, राइट? दोनों को ऐड करके बोलो तो -∞ to 5/7। Yes, sir. यही आ रहा है। देख लो एक बार, सभी लोग देख लो, थोड़ा अच्छा मे बी थोड़ा स्ट्रगल जाए, बट ओके, चलेगा। टेक योर टाइम, आराम से। सर हाँ बेटा, सर वो 2/5 to 5/7 है, उसमें मतलब इक्वलिटी नहीं आएगी? इक्वलिटी तो यहाँ लिया ही नहीं ना, ऊपर वाले में ले लिया था मैंने। अच्छा, ये वाले के लिए बोल रहे हो? हाँ सही बोल रहे हो, 5/7 में इक्वलिटी है ना। डाउन मेरे को सही बोल रहे हो, ये 5/7 का इक्वलिटी है। वेरी ट्रू, वेरी गुड, अच्छा बात कर रहे हो। सर यहाँ पे, सर यहाँ पे इक्वलिटी -1/3 से 5/7 है ना, देखो इक्वल टू था ना क्वेश्चन में, तो 2/5 में तो कोई दिक्कत नहीं, पहले से ही ले चुका था। 5/7 में क्लोज हाँ आएगा। सर वही, हाँ इक्वलिटी आएगी। डन। तो केस आपने बोला ना कि व्हेन इट इज इक्वल टू 0, वो वाला नहीं समझा। क्या बेटा, फिर से पूछें? सर व्हेन 5x minus 2 इज इक्वल टू 0, वो क्यों करना चाहिए पर सर? वो भी केस, क्योंकि सेटिस्फाई आपका आंसर अपने आना चाहिए, आएगा। क्योंकि अगर राइट साइड 0 हो गया और लेफ्ट साइड पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव ग्रेटर देन नेगेटिव और पॉजिटिव ग्रेटर देन 0। सर समझा नहीं। अगर x को 2/5 रख दो, सर आवाज बहुत कम आ रहा है। सर सर आवाज आपका नहीं आ आवाज रही नहीं आ आपका। रहा। x इज इक्वल टू 2/5 देखो तो क्या आ रहा है,
सर आवाज बहुत कम आ रहा है। हाँ सर बहुत कम आ रहा है। सब लोग म्यूट करो अपने आप को, आवाज आ जाएगा। हाँ सर 2/5 रखेंगे तो 0 आ जाएगा। यस। और लेफ्ट साइड में क्या आएगा? 4/5 -3 यस यस। -11/5 का मॉड, तो 11/5, 11/5 ग्रेटर देन 0 इज ट्रू और नॉट? सही स्टेटमेंट है या नहीं? अरे सर 11 सही वाला है सर। सही है, तो इसलिए बोला सही है। सर हाँ बेटा, ऊपर में से एक डाउट है बोलो ना। सर। वो हम लोग ए केस में अगर इक्वालिटी नहीं लेते और बी में लेते तो चलता, या फिर आंसर चेंज हो जाता? कोई आंसर में चेंज नहीं आएगा, एकदम सही है। या ए बी में नहीं लेते, एक सी केस बना के इक्वलिटी लेते, तब भी चल जाता। नहीं सर, मैं ए और बी में मतलब ऐसे एक्सचेंज कर देते इक्वालिटी, तो फर्क नहीं, आंसर सेम नहीं रहता ना? आंसर हमेशा, आंसर यूनिक होता ना बेटा मैथ्स का। बहुत कम ऐसे क्वेश्चन है जो पैराडॉक्स होते हैं। पैराडॉक्स का मतलब होता है कि उसके यूनिक आंसर नहीं होके 2-3 आंसर होते हैं और सबके सब सही भी होते हैं। ओके सर। हाँ, वो आगे चल के थोड़ा सा अभी ये रह जाएगा, फिर बताऊंगा। ये गिवन है, राइट। थर्ड केस, इसमें मॉड वाली चीज लेस देन है, तो ध्यान दो, मॉड वाली चीज लेस देन है, तो फिर वही केस मैंने लिया x-2 लेस देन 0। x-2 लेस देन 0 रहेगा तो ये नंबर नेगेटिव हो जाएगी, और नेगेटिव ग्रेटर देन पॉजिटिव नंबर तो हो ही नहीं सकता, राइट। या इक्वल टू भी मैं कर लूँ, राइट। x-2 ए केस में लिया तो यहाँ पर ये आंसर हो गया नो वैल्यूज। 5 कर दूं? हाँ सर। आई गेस एवरीवन ओके। यस x सर। इक्वल टू 2 के लिए ये नेगेटिव आ Yes. गई, और ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है। पॉजिटिव लेस देन नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता, या 0 लेस देन पॉजिटिव वैल्यू तो हो ही नहीं सकता, तो उसको मैंने डिस्कार्ड कर दिया, हटा दिया। मतलब फिर वही केस है, लेकिन अच्छी बात हो गई। सेकंड केस में x-2 ग्रेटर देन 0, अगर ग्रेटर देन 0 है तो फिर वही करेंगे जो पहले किया था, होल स्क्वायर लेस देन x-2 द होल स्क्वायर, राइट। तो 2x minus 1 minus x plus 2 and 2x minus 1 plus x minus 2 less than 0, right? X plus 1, 3x minus 3 less than 0, minus 1 and plus 1, right? माइनस 1 प्लस 1 लेस देन 0 है, तो ये इन बिटवीन आ गया, और मैं क्या लेके चला था, x ग्रेटर देन 2 के लिए, राइट। x ग्रेटर देन 2, ये 2 था, 2 के लिए, 2 से ग्रेटर के लिए क्या कुछ आंसर दिख रहा है, बन रहा है कुछ? नहीं सर। तो यहाँ के लिए भी 5 आ गया, मतलब पूरा मिला के आंसर, ऐसी कोई भी वैल्यूज नल नहीं। सेट था सर। दिस विल से सो आंसर इज नल सेट 5। इज इट ओके? Yes, यस sir. सर। नोट कर लो प्लीज। ये मॉड के टफ क्वेश्चन कहलाते हैं, राइट। आई डोंट थिंक इतना भी टफ है, अगर समझने की बात है। इफ यू आर लाइक गेटिंग दिस, आसान होने लग जाते हैं। Done, sir. डन। यस सर।
Try this. Mod of x minus 2 less than 2x plus 1. सर सर ये लेस देन वाले में तो मतलब हमेशा ये पार्ट तो नल सेट ही आएगा ना। हाँ बेटा, हाँ सर। वाले को सॉल्व करना पड़ेगा जब वो पॉजिटिव होगा ना। वेरी गुड, यही सब चीज़ें दिमाग में बैठी रहेगी ना, क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत सिंपल हो जाता है।
वेरी गुड, वेरी गुड। एक बार चेक कर लेना आंसर्स को सभी लोग। डन सर। डन, वेरी गुड। Right, a case 2x plus 1 less than 0, no solution, or equal to 0, no solution. B case 2x plus 1 greater than 0, x minus 2 the whole square less than 2x plus 1 the whole square. So this is 2x plus 1 minus x plus 2, 2x plus 1 plus x minus 2 must be greater than 0. X plus 3 and 3x minus 1 greater than 0. Minus 3, 1 by 3 greater than this value, right? But हमने कब के लिए लिया था x greater than minus half, तो minus half तो कहीं यहाँ पर आ रहा होगा, right? Different color, ये parental था, right? So answer from this is 1 by 3 to infinity, open था, closed था, open था, right? Something like this. I guess this is coming. Yes, sir. Yeah. हाँ सर। Very good. Yes, sir. सर सर मतलब ए पार्ट कह रहा है कि एक भी सोल्यूशन नहीं और बी पार्ट कह रहा है कि मतलब 1/3 से हाँ इंफिनिटी सर, तो है। उसमें आंसर क्या होगा? हाँ सर वही, ये पार्ट कब के लिए कह रहा है कोई सॉल्यूशन नहीं है? जब ये नेगेटिव हो, और नेगेटिव हो 2x plus 1। उस समय x की वैल्यू क्या है? x लेस देन माइनस हाफ के लिए कोई सॉल्यूशन नहीं है, बट x ग्रेटर देन माइनस हाफ के लिए ये सॉल्यूशन है। तो a का अलग आंसर है, b का अलग है। सर तो Right. कंबाइंड तो आंसर कंबाइंड आंसर 1/3 टू इंफिनिटी होगा ना सर? वो भी ऊपर वाला भी आंसर आ रहा होता, वहाँ पर टोटल वैल्यू आ रही होती तो आंसर होता माइनस इन्फिनिटी से माइनस हाफ एंड 1/3 टू इन्फिनिटी। क्या सर? क्या सर, नहीं समझा। आंसर आंसर तो एंड सर मतलब हमें इनइक्वालिटी, अरे सॉरी इक्वालिटी लेने का मतलब ऐसा कंपलसरी है? समझ में आएगा, बोलने देगा ना। अच्छा ओके सर। बोल रहा हूँ कि फर्स्ट केस में आंसर आया 2x plus 1 लेस देन 0 पर आया 5, राइट? 2x plus 1 लेस देन 0 पर आया 5, मतलब 2x plus 1 मतलब x लेस देन माइनस हाफ में कोई सॉल्यूशन नहीं है। फिर सेकंड केस में मैंने सॉल्व किया x ग्रेटर देन माइनस हाफ के लिए क्या सॉल्यूशन है, तो उसमें आया माइनस इन्फिनिटी टू माइनस 3, 1/3 टू इन्फिनिटी। तो हमने कहा कि इतना इतना तो हमें चाहिए ही नहीं, क्योंकि हमने तो सॉल्व केवल किया था माइनस हाफ के ऊपर के लिए, तो हमने माइनस ऊपर वाले जो वैल्यूज थे वो लेके रख लिया, राइट? अब बोला कि ए में जो आंसर आ रहा है प्लस जो बी में आंसर आ रहा है दोनों को मिला के मैं लिख दूंगा, लेकिन दिखा ए में तो कोई आंसर ही नहीं आ रहा, तो मैं बोला ठीक है भाई जो बी में आ रहा वही आंसर लिख दिया, राइट? लेकिन इसके पहले जो केसेस थे जो मैंने यहाँ पर रिटर्न वाली किए थे उसमें ध्यान से देखो, ए में केस क्या आ रहा था? ऑल वैल्यूज, अगर 2x minus 3 का मॉड ग्रेटर देन 5x minus 2 होता, राइट? तो ये पॉसिबिलिटी के लिए मैं बोल रहा था कि x लेस देन 2/5 के लिए मैं बोलता ऑलवेज ट्रू है। ये बात समझ में आ रही है? ये हाँ सर।
राइट। तो उस समय मैंने बोला कि मेरा पहले ही ए में आंसर आ गया -∞ to 2/5। फिर मैंने सॉल्व किया दूसरे वाले को। अब 2/5 से ग्रेटर के लिए जो वैल्यूज आई उसको जब मैच किया तो देखा वो 2/5 से 5/7 के बीच में आ गया। तो ए में जो आंसर आया और बी में जो आंसर आया, मैंने दोनों को देखो यूनियन किया, मिला दिया दोनों को। हाँ तो सर। जाने के हाँ बाद सर। ओके। यस सर, समझा हाँ सर। सर। सर तो सर जो अभी से आपने क्वेश्चन दिया वो लेस देन वाला, उसमें पहले में आंसर -∞ to -½ आ रहा है। पहले में किसमें? अभी जो लास्ट क्वेश्चन है बेटा। हाँ हाँ सर, तो वो -∞ to -½ तक होगा ना? नहीं होगा सर, -½ to ∞ होगा। -∞ to -½ क्यों होगा बेटा? अगर वो नेगेटिव हो गया, 2x + 1 जो है वो नेगेटिव हो गया, तो ध्यान दो नेगेटिव ग्रेटर देन पॉजिटिव नंबर आ रहा है आपका। क्वेश्चन क्या दिया है उसको ध्यान से देखो। ये नेगेटिव बोल रहे हो आप होगा, अब ये नेगेटिव है, ये मॉड तो हमेशा पॉजिटिव होता है, हाँ हाँ हाँ। लेस देन पॉजिटिव होगा ना, नेगेटिव ग्रेटर देन पॉजिटिव कैसे बोलूंगा? अच्छा ओके सर। सर मतलब वहाँ पे फाया, मतलब वहाँ पे कोई आंसर ही नहीं आया, तो हमने बी पार्ट का आंसर लिया, राइट? तो आंसर बी अच्छा। पार्ट का ही है। ओके सर। सर मतलब इक्वालिटी नहीं है इसलिए वो ऐसे नल सेट आ रहा है। इक्वलिटी नहीं है मतलब बेटा? सर वो सिर्फ लेस देन है ना, लेस देन इक्वल टू होता तो फिर चेंज होता, नल सेट नहीं आता ना ऐसे। इक्वलिटी से कहाँ फर्क पड़ा बेटा? सर क्वेश्चन में पॉजिटिव नेगेटिव के कारण आंसर चेंज आया ना, क्योंकि राइट साइड अभी तुम्हारा पॉजिटिव है या नेगेटिव उससे फर्क पड़ रहा है ना बेटा। हाँ सर। इक्वलिटी से तो कोई बहुत बड़ा फर्क ही नहीं पड़ेगा आंसर में। सर मुझे एक चीज समझ नहीं आई। क्या बेटा? सर मतलब अगर केस ए में अगर नेगेटिव हो और उसका जो सॉल्यूशन आता है, हाँ, और केस बी में पॉजिटिव हो उसका जो सॉल्यूशन आता है, हम उसको कंबाइन क्यों करते हैं? मतलब दोनों का तो केसेस अलग है ना, तो फिर दोनों के आंसर्स अलग अलग होने चाहिए, फिर